أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، وہ علم والے جو انصاف پر قائم رہنے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ زبردست غالب اور زبردست حکمت والا ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر میری بندگی اور میری اطاعت اور میری فرما برداری کرو۔ جو پیغام میں نے تمہیں دے دیا ہے اس کے مطابق عمل کرو اور اس کی تعمیل کرو۔ وہ پیغام کیا ہے، وہ پیغام کیسے معلوم ہوتا ہے، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ یعنی جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیے ہیں اس پر عمل تبھی ممکن ہے جب اس کا علم ہوگا۔ اگر انسان کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو انسان اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ عصر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ناکامی میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں اور گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مصائب کے اوپر، مشاکل کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ چار اوصاف والے لوگ یہ گھاٹے میں نہیں۔ یہاں پہ بھی اہل علم کا استدلال یہ ہے کہ علماء نے کہا ایمان لانا، عمل صالح کرنا، تواصی بالحق کرنا اور تواصی بالصبر کرنا، یہ چار چیزیں کون کرے گا؟ وہی آدمی کرے گا جس کو ان باتوں کا کیا ہے، علم ہوگا۔ جب تک انسان کو پتہ ہی نہیں میں نے ایمان کس پہ لانا ہے تو وہ ایمان کس چیز پہ لائے؟ ایمان اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور جو سابقہ کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کون ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کتابوں پر اور ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہ سارا علم کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا فرض وہ علم حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ علم ہے کہ انسان علم حاصل کرے گا تب آگے چل کر جو ہے وہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ نہیں، دنیا کا بھی یہی رول ہے، دنیا میں بھی یہی قاعدہ اور یہی نظام چلتا ہے۔ کوئی آدمی کسی بھی قسم کا بزنس کرنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، مزدور اور مستری بننا چاہتا ہے، وہ انسان پہلے وہ ہنر سیکھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، پھر آگے جا کر وہ کام کرتا ہے۔ درزی بننا چاہتا ہے
तो पहले उस्ताद के पास बैठकर बटन लगाने सीखता है, इंसान चाक करने सीखता है, फिर सिलाई सीधी करनी सीखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा हुनर सीखकर फिर वो दर्जी की दुकान खोलता है और दर्जी का मास्टर जो है वो बन जाता है और काम करता है। कोई आम काम ले लें, कोई खास काम ले लें, कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जहां पे इंसान जाकर सीखने के बगैर जो है वो काम करना शुरू कर। मजदूरी करनी है, रेता उठाकर, बजरी उठाकर, सीमेंट उठाकर ऊपर वाली छत के ऊपर लेकर जाना है। जब तक मजदूर को पता नहीं है कितनी कितनी मिकदार लेकर जानी है और कैसे उठाकर लेकर जाना, वो नहीं ले जा सकता। उसको मिस्त्री बुलाता है, ठेकेदार बतलाता है, ये चीजें इसमें इतने डाल लो और ये लेकर ऊपर चले, इतना इतना सामान जो है वो लेकर। अलगर्ज हर चीज के लिए इंसान को पहले जानना जरूरी है, फिर अमल की बारी जो है वो बाद में आती है। तो लिहाजा इल्म ये फर्ज है हर इंसान के ऊपर, हर इंसान के ऊपर फर्ज है। लिबास पहनना है, कैसे पहनना है? इंसान दूसरों को देखता है कि इंसान शलवार जो है वो बाजुओं में नहीं पहनी जाती, बाजू जो है वो पाँव में नहीं पहने जाते, तो लिहाजा इंसान उसको सीधे तरीके से पहनता हुआ देख लेता है तो पहन लेता है। जिसने कभी पैंट शर्ट ना पहनी हो और उसके बटन सही तरीके से बंद ना किए हो, तो वो शर्ट के बटन जो है वो पैंट के चाकों के साथ जो है वो बंद कर दे तो उसको तो कुब पड़ जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा और डॉक्टरों के पास भागेगा कि मेरा बेटा जो है वो टेढ़ा हो गया, इसका इलाज कर। इसलिए तो उसे पता ही नहीं है कि पैंट कोट जो है वो कैसे पहना जाता है। अलगर्ज खुलासा कलाम ये है कि दुनिया जहान का निजाम ये है, जिस बात के ऊपर आप अमल करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि पहले आप उसका इल्म सीखें, उसके बारे में जानें कि ये क्या काम है, ये इल्म है। और ये इल्म की फर्जियत के ऊपर जबरदस्त दलील है कि इल्म का हासिल करना इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात है, दुनिया जहान का हम इल्म हासिल करते हैं, दीन का काम एक ऐसा रह जाता है जहां पे इल्म की कोई जरूरत नहीं। 40 साल 50 साल इंसान नमाजें पढ़ता है, 50 साल और 60 साल की उम्र का बाबा बुजुर्ग बड़ी उम्र वाला, उसे आप कहिए क्या है बैठे मुझे नमाज सुनाएं, वो अव्वल तो नमाज सुनाने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर तैयार हो जाएगा तो 20 वो गलतियां करेगा और वो कहेगा 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं तो इसी तरह नमाज पढ़ रहा हूं। किसी से कलमा पूछ लीजिए, सही तरीके से इंसान कलमा नहीं सुना सकेगा। वुजू का तरीका सुन लीजिए, वुजू का तरीका इंसान 100% सही जो है वो नहीं बता सकेगा। निकाह का तरीका पूछ लीजिए, तलाक का तरीका पूछ लीजिए। अलगर्ज दीन के जितने मसाइल हैं, मुआशरे के 90% 95% आप कह दें, मेरा ख्याल है कि शायद इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। अक्सर लोगों को 100% मसाइल का इल्म नहीं है, जबकि सारी जिंदगी गुजर गई है ये मामलात करते हुए। मौलवी से बहस करनी हो, मुनाजरा करना हो, हर नथु फतू के पास 20 दलाइल मौजूद हैं, बहुत मुनाजरा करता है, बड़ी बहस करता है, और वो कहेगा मौलवी साहब आपको मसलों का इल्म नहीं, मुझे भी बड़ा पता है, मैं भी मौलवियों के पास बैठता हूं, लेकिन नमाज सुन लो, अल्लाह के फजल से नमाज नहीं आएगी। वुजू से पूछ लो, वुजू नहीं आएगा। निकाह का तरीका पूछ लो उसको कि निकाह की शराइत क्या होती हैं, निकाह के मामलात क्या होते हैं, नहीं आएगा। छोटे मोटे मसाइल में वो बड़ी बहसें करेगा और बड़े लड़ाई झगड़े जो है वो करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म को फर्ज करार दिया है। लोगों पहले इल्म को सीखो, इल्म हासिल करो, फिर मैदान में आओ, फिर आगे अमल भी करो, फिर मुनाजरा भी करो, फिर बहस मुबासा भी करो, फिर बातचीत जो है वो आगे चलती है। ये इल्म जो है वो बहुत जरूरी है और इसकी अहमियत कितनी है, इसकी फजीलत कितनी है, बेशुमार वाकयात हैं जो हमें बतलाते हैं कि ये इल्म बड़ा मुहिम है, बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी अहमियत वाला है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फरिश्तों ने इतराज कर दिया, क्या करना है इसको पैदा कर, ये ऐसे काम करेगा, ऐसे करेगा। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने पहला काम ये किया कि आदम अलैहिस्सलाम को क्या किया, इल्म सिखलाया।
علم سکھلا کر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، تم بتلاؤ یہ چیزیں کیا ہیں؟ فرشتے کہنے لگے ہمیں کیا معلوم، آدم تم بتلاؤ۔ آدم نے فر بتلا دیا، کہا دیکھا نا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے جس کا علم تمہارے پاس نہیں۔ اللہ نے اپنی برتری بھی، آدم علیہ السلام کی برتری بھی علم کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظاہر فرمایا۔ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ساری قوم، ساری مخلوق ایک قسم کی ان کے سامنے، اللہ نے بہت زبردست حکومت عطا فرمائی۔ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائب، کہا کیا مسئلہ ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ سامنے آ جائے، اگر غائب ہے بغیر عذر کے تو شدید سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا اور آ کر کہنے لگا انی احطت بما لم تحط بہ، میرے پاس سلیمان ایسی بات کا علم ہے تیرے پاس وہ بھی علم نہیں۔ تو بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت عظیم بادشاہ ہے، بڑی دنیا کے اوپر حکومت کرتا ہے، لیکن میرے پاس ایسی خبریں ہیں جو تیرے پاس خبریں نہیں ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کا تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی کتنی قوم تھی، کتنی مخلوق کے اوپر ان کی حکومت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہوائیں مسخر کر دی، جنوں کو مسخر کر دیا، شیاطین کو مسخر کر دیا، پوری دنیا کے اوپر ایک قسم کی ان کی حکومت تھی، لیکن بہت ساری باتیں ایسی تھی ان کا علم سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی موجود نہیں تھا اور اس کا علم ہدہد کے پاس تھا۔ اس علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا تذکرہ سورہ نمل کے اندر جو ہے وہ کر کہا میرے پاس وہ علم ہے، بادشاہ سلامت آپ کے پاس بھی وہ علم نہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا سے لے کر ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ لے کر آیا۔ وہ خبر جو ہے پھر بتلائی، وہاں پہ ایک قوم ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کہا اچھا، اس کا پھر اشر منگایا، لمبا قصہ ہے، بیان کرنے کا مقصد ہدہد پرندہ، اس کا ذکر قرآن مجید میں صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ اس کے پاس ایک بات کا علم ہے جو علم بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی موجود نہیں۔ کتا چھوٹا سا جانور ہے جس کا نام بھی لیں تو انسان کی زبان پہ عجیب و غریب قسم کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جی نہیں کرتا اس کا نام لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اس کو گھر میں رکھا جائے بغیر ضرورت کے تو روزانہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کی رات اجر جو ہے انسان کا کم کر دیتے، اس کے نامہ اعمال سے ایک کی رات نیکیاں حذف ہو جاتی ہیں۔ وہ کی رات کتنا بڑا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک کی رات کا ذکر کیا، کہا کتا نہ رکھیں گھر میں، جس کا رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وگرنہ تمہاری نیکیاں دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائیں۔ لیکن یہی کتا اگر آپ اس کو تعلیم دے دیتے ہیں، اسے سکھلا دیتے ہیں، مکلف بنا دیتے ہیں، یہ تعلیم یافتہ بن جاتا ہے، اس کو شکار کرنا آ جاتا ہے، یہ کتا آپ کے لیے گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے شکار کر کے جانور لے کر آتا ہے، وہ شکار کیا ہوا جانور بھی تمہارے لیے کھانا حلال اور جائز۔ یہ زندہ پکڑ کر لے آئے، اسے ذبح کر لو، یہ ہلاک کر دے، اس نے خود نہ کھایا ہو، سالم جانور ہلاک شدہ لا کر تمہارے سامنے رکھ دے، وہ تمہارے لیے ذبح شدہ ہے، تم کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دو، اور یہ جانور پکڑ کے لے رہا ہے زندہ یا فوت شدہ، اس کا کھانا تمہارے لیے حلال۔ کیوں؟ یہ کتا جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، اسے سکھلا دیا گیا، علم دے دیا گیا۔ یہ علم کی فضیلت، یہ علم کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانور جسے آپ تعلیم دے دیتے ہیں اس کے بغیر وہ گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ تعلیم یافتہ ہو جائے تو آپ اسے گھر میں رکھ بھی سکتے ہیں، بلکہ اس کا شکار کیا ہوا جانور بھی آپ کے لیے کھانا حلال اور جائز۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، خاتم النبیین بنایا، سب سے پہلی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ کہا اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھیے، علم کو سیکھیے، علم پڑھنے سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، لکھنے سے آتا ہے۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھلایا ہم نے جو انسان پہلے جانتا نہیں۔ الغرض
آپ کے اوپر پہلی وحی جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں آتی ہے کہ لکھنا اور پڑھنا، سیکھنا اور سکھلانا یہ سب سے اہم فریضہ ہے جس کی طرف امت مسلمہ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ دنیا کے علوم کی طرف تو انسان جاتا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں، اصل علم جو ہے وہ دین کا علم ہے، اس کو پڑھیے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ سب سے پہلے موجود تھا اور اس سے پہلے کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں رہے گا۔ موجودہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں سب سے پہلی چیز اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ کیا پیدا کی؟ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا اکتب، لکھو۔ قلم کہنے لگا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ ڈالو۔ اس علم نے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے پھر لکھ ڈالا، اسی کو لوح محفوظ کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر دیا، اسی کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کائنات کا کام بھی لکھنے کا ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ یہ علم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ علم اہمیت کا حامل بھی ہے، اور میں نے کہا اس کا سیکھنا فرض بھی ہے، اور اس کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ احادیث آپ سنتے رہتے ہیں، بے شمار احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن مجید میں یہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی علم کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، آل عمران کی آیت ہے 18 نمبر غالباً، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ گواہی کس نے دی ہے؟ فرشتوں نے دی ہے، اور یہ گواہی کس نے دی ہے؟ اہل علم نے دی ہے، علم والے لوگوں نے دی ہے۔ تین چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کے علاوہ چوتھی کسی چیز کا تذکرہ نہیں۔ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور علماء نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ گویا کہ اہل علم کی اس قدر فضیلت اور اس قدر مقام اور شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ، فرشتوں کے نام کے ساتھ علماء کا تذکرہ فرماتا، یہ علم کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جانتے نہیں کہ علم والے اور غیر علم والے یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہوتے، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے۔ ایک بندے کو ایک بات کا علم ہے اور دوسرا اس سے جاہل ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جیسے دھوپ اور سایہ کبھی برابر نہیں ہوتے، جیسے اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہوتے، جیسے گونگا اور بولنے والا انسان برابر نہیں ہوتے، جیسے سننے والا اور بہرا انسان یہ کبھی برابر نہیں ہوتے، اسی طریقے سے علم والا اور جاہل آدمی کبھی برابر نہیں ہوتے۔ یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ علم والا اور جاہل جو ہے وہ لوگوں کبھی برابر نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جن میں علم کی فضیلت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ ایک دو حدیثیں میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من سلکا طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم سیکھنے کے راستے پر چل نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان فرما دے۔ یا انسان کو وہ ایسے ہی سمجھتا ہے کہ میں جنت کے راستے پہ چلتا ہوں۔ اور وَإِنَّ الْعَالِمَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، فرشتے اپنے پر جو ہے وہ اس آدمی کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر جو ہے وہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ایک علم والے شخص کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوق مغفرت کی اور بخشش کی جو ہے وہ دعائیں کرتی ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو رحم فرما دے، اللہ اس کے حال پہ رحم کر دے۔ آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق، ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعُلَمَاءِ
फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम व फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल कमरी लैलतल बद्री अला साइरिल कवाकिब। फरमाया आलिम, इल्म वाला, उसकी फजीलत तहज्जुद गुजार के ऊपर ऐसे है जैसे मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत अपने एक अदना उम्मती के ऊपर है। अदना उम्मती का मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं है। फरमाया इसी तरह तहज्जुद पढ़ने वाला बंदा दिन को रोजा रखता है, रात को मसल्ले पे खड़ा होकर तहज्जुद पढ़ता है। फरमाया इल्म वाले बंदे के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं। इल्म वाले आदमी की फजीलत दूसरे लोगों पर ऐसे ही है जैसे 14वीं के चांद की फजीलत सितारों पे होती। सितारों की रोशनी मात पड़ जाती है जहां पे 14वीं का चांद जो है वो चमक रहा होता है। फरमाया लोगों, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये अंबिया के वारिस हैं, ये किसी और के वारिस नहीं है। और अंबिया जो हैं लम युवर्रिसु दिरहमन वला दीनारा, अंबिया अपने पीछे पैसे और दौलत की जायदाद छोड़कर नहीं जाते। व इन्नमा वर्रसुल इल्म, वो अपने पीछे इल्म छोड़कर जाते। फमन आखज़हु आखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, जो आदमी इल्म सीख लेता है वो इस दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हासिल कर लेता। ये लंबी हदीस है जो मैंने इख्तिसार के साथ जिक्र किया और उसका तर्जुमा पेश किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक एक इल्म हासिल करने वाले आदमी की का क्या मुकाम, क्या फजीलत है, क्या अहमियत है, किस कदर आपने जो है वो चारों तरफ में रोशनी डालकर जो है वो बतलाया कि इल्म हासिल करने वाला शख्स दुनिया में हर तरह से मुमताज है और हर तरह से दूसरों के ऊपर फजीलत और बर्तरी और फौकियत जो है वो रखता है। लेकिन यह इल्म कौन सा? दुनिया का इल्म? कतन ऐसा नहीं। दुनिया का इल्म तो हर चीज का इल्म है। बढ़ई, तरखान, नज्जार का इल्म, यह भी एक इल्म है। दर्जी का भी एक इल्म है। आम करियाने की दुकानें बनाना और दूसरे सामान को फरोख्त करना, यह भी इल्म है। कपड़े का कारोबार करना, यह भी एक इल्म है। इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, पायलट है, साइंस है, सारे उलूम हैं, ये सब हुनर हैं। इल्म कहना इल्म कह लें, हुनर कहना हुनर कह लें, फनून कहना फनून कह लें। जिंदगी गुजारने का तरीका कहना तो जिंदगी गुजारने का तरीका कह लें, या माल कमाने का तरीका कहना तो उनको कह लें। ये माल कमाने के सारे जरिए हैं, तरीके हैं। इंजीनियर, डॉक्टरी, पायलट बन जाना, साइंसदान बन जाना, कोई और अहम इस मामले में पेशरफ्त कर लेना, ये इंसान को अल्लाह से आशना नहीं करता, इंसान को अल्लाह ताला के बारे में नहीं बतलाता। मैंने जिक्र किया ना, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमन, मगर वो लोग जो ईमान ले आते। ईमान ले आते किस चीज पर ईमान लाना? डॉक्टरी हमें नहीं बतला सकती कि किस चीज पर ईमान लाना, इंजीनियर हमें नहीं बतला सकती कि किस चीज पर ईमान लाना। वो दीन का इल्म, दीन का इल्म बतलाएगा कि ये कैटेगरी है, इन चीजों के ऊपर आपने जो है वो ईमान लाना है। अगर ईमान लाएंगे तो आप कामयाब बन जाएंगे, इन चीजों पे आप अमल करेंगे तो कामयाब बन जाएंगे, वरना आप नाकाम। तो गोया कि ये दीन का इल्म है जो ये सारी फजीलत और अहमियत जो है वो जिक्र की गई। दीन के इल्म की ये फजीलत है कि उसके लिए आसमान के फरिश्ते जो है उसके पांव के नीचे अपने पर बिछाते हैं और सारी कायनात से आला और ऊंचा मुकाम उसको अता किया जाता है। आसमान और जमीन की सारी मखलूकात उसके लिए बख्शिश और मगफरत की जो है वो दुआएं करती। इंग्लिश सीखनी है सीखिए, शरीयत मना नहीं करती। आप पायलट बनना चाहते बन जाइए, शरीयत मना नहीं करती है। आप डॉक्टर बनना चाहते बन जाइए, शरीयत मना नहीं करती है, लेकिन उसकी फजीलत नहीं है। फजीलत इस इल्म की है जिसे दीन कहा जाता है, जिसे काल अल्लाह व काल रसूल कहा जाता है, जिसको शरीयत ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। कौन सा इल्म? साइंस का इल्म? अगर फर्ज है तो ये मेरे सामने बैठे हुए सब गुनाहगार, इसलिए कि किसी ने भी साइंस का इल्म हासिल नहीं किया। इल्ला माशाअल्लाह चंद फर्द होंगे, 2 4 5 बंदे निकल आएंगे कि हमने सीखा हुआ, बाकी सारे गुनाहगार। शरीयत तो कह रही है कि इल्म का सीखना हर इंसान पे फर्ज है। ना किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है, ना किसी ने फिजिक्स पढ़ी है, ना किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है,
किसी ने भी पढ़ी, इक्तिसादियात माशियात किसने पढ़ी हैं? किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो ये जो इल्म फरीजा है, इससे मुराद काल अल्लाह व काल रसूल का इल्म, दीन का इल्म है। दीन का इल्म सीखना जो है वो फर्ज है। और ये मैं कई दफा अपनी गुफ्तगू में जिक्र कर चुका हूं। कितना इल्म सीखना फर्ज है? जिसके ऊपर आपने अमल, जिसके ऊपर शरीयत ने आपके लिए अमल करना फर्ज करार दे दिया, उतना इल्म सीखना जो है वो हर बंदे का जिम्मे फर्ज। अगर वुजू हमने करना है, वुजू का सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है। 50 साल 60 साल गुजर गए, हमारा वुजू गलत रहा, उसमें मौलवी का कोई कसूर नहीं। कल क़यामत के दिन किसी मौलवी का, किसी आलिम का गिरेबान आप नहीं पकड़ सकते कि इसने हमें बतलाया नहीं। आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा कि आपने वुजू सीखा क्यों, आपने किससे पूछा, कितनी मर्तबा पूछा, हजरत मैं वुजू ऐसे करता हूं, क्या मेरा वुजू सही है? कुल्ली करता हूं, उसका इस तरीके से तरीका है, नाक में पानी डालने का यही तरीका है, चेहरे को धोने का, बाजू पांव के धोने का, खलाल कहां कहां पे करना, कहां नहीं करना, क्या क्या मतलब है? अगर नहीं वुजू किया तो आप गुनाहगार हैं। इसलिए कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, सीखना फर्ज, इसके मानी को सीखना फर्ज है हमारे ऊपर। ज़कात, जो मालदार आदमी है उसके ऊपर ज़कात का सीखना फर्ज है। जो हज के लिए जा है उसका हज का तरीका सीखना जो है वो फर्ज। कितने अफसोस की बात है, आजकल तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए उम्रा भी नहीं होता, 4-5 लाख रुपए में उम्रा होता है, और 10 लाख में कम से कम 10-12 लाख में जो है वो हज होता है। 10-12 लाख रुपया इंसान खर्च करता है और दिन रात एक कर देता है, पासपोर्ट बनाने में, शनाख्ती कार्ड बनाने में, टिकट लेने में, और जो है वो एजेंट के चक्कर लगाने में, टिकट होके कराने में, अपने जो है वो सामान को रेडी कराने में। लेकिन हज का तरीका सीखने के लिए आधा घंटा भी, कहीं पे वर्कशॉप करवाई जाती है, वहां पे पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ओ जी मैं काम चला गया था, मुझे एक मसला तो बता दे, बस एक मसला बतलाने से हज आ जाता है। फिर उधर जाकर 20 गलतियां इंसान करता है, 20 गलतियां। ये है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर इल्म का सीखना जो है वो फर्ज है, जिस मसले के ऊपर उसने अमल करना है। जिस पे अमल नहीं करना वो फर्जे किफाया है, वो नहीं सीखता ना सीखे, वो दूसरे सीखने काफी हो जाएगा। लेकिन जिस पे अमल करना है उसका सीखना फर्ज। निकाह करना है, निकाह के मसाइल सीखे। तलाक देनी है, बड़े अफसोस के साथ मैं कहूंगा और बड़े गमी और दुखी दिल के साथ कहूंगा कि हमारी कौम जाहिल है, उजड़ है, गंवार है, तलाक के मसाइल का इल्म नहीं है। बर्तन तू क्यों धो रही है, तुझे तलाक। तू यहां क्यों खड़ी है, तुझे तलाक। तूने ये कपड़े क्यों पहने, तुझे तलाक। तो तुझे तलाक का माना आता है, तुझे मालूम है इसका मकसद क्या है, और फिर बाद में क्या नतीजा निकलता है। फिर मौलवियों के चक्कर लगाता है, मैंने 3 तलाकें दे दी हैं, आप 2 रिश्तों को जोड़ नहीं सकते। हम कहते हैं नहीं जुड़ता, आपने तीनों दे दी। मौलवी साहब आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, आप लोगों को तोड़ते हैं, आप बस लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नकम्मे इंसान, मौलवी ने तोड़ा है, तलाके तू देकर आया है और वो कह रहा मौलवी ने तोड़ दिया। मौलवी कैसे जोड़ देगा? कुल्हाड़ी अपने पांव के ऊपर खुद मार दी है और कहता मौलवी ने मारी है। ये जहालत है हमारी कौम की कि जिस काम के ऊपर अमल करना है उसका भी पता नहीं है और ना इंसान उसको सीखता है। इसको शरीयत ने कहा है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का हासिल करना ये हर मुसलमान पे फर्ज है। जिस बात के ऊपर आप अमल करना चाहते, तलाक देना चाहते हो, तो कम से कम जाकर अब तो पूछ ले, मौलवी साहब मैं तलाक देने लगा हूं, मैं तलाक कैसे दूं, कितनी दूं, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, मैं जिस मकसद के लिए तलाक देना चाहता हूं वो मेरा मकसद हासिल हो जाएगा। तू आ, तुझे 20 मसले बतलाएंगे, तेरे लिए खैर का जरिया बन जाएगा। लेकिन इंसान जो है दुनियादारी के लिए और फिल्मों के लिए और ड्रामों के लिए और व्हाट्सएप के लिए और फेसबुक के लिए 24 घंटे मौजूद हैं, लेकिन एक मसला सीखने के लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं निकलते। इसे कहा है लोगों ये फर्ज है, और अगर आप गलत करेंगे तो उसका खमियाजा दुनिया में भी भुगतना पड़ता है
आखिरत में तो फिर भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये इल्म है। इस इल्म के बारे में बहुत सारी मैं बातें करना चाहता था, टाइम पूरा हो गया है, कि उलमा ने कैसे सफर किए इल्म सीखने के लिए, किस किस तरीके से लोगों ने अपनी जायदादें बेची। एक बहुत बड़े आलिम है, बस उसकी तरफ इशारा करके मैं बात खत्म किए देता हूं। एक आलिम ने अपना घर बार बेचा, घर बार बेचकर अपने बेटे को पूंजी जमा देकर बैतुल्लाह का, मक्के का, मदीने का सफर करवा दिया। मक्के में मदीने में चले गए। बेटा जाकर इमाम मालिक रहमहुल्लाह की मजलिस में बैठ गया। छोटा सा बच्चा था, कोई बात हो गई, इमाम मालिक ने कहा ये बच्चे रह गए हमारी मजलिस में। हम भी गुस्से में आ जाते हैं, मस्जिद में आके कोई बच्चा शोर करता है, तो ये क्यों शोर कर रहा है, लोगों की नमाजें खराब हो रही, क्लास खराब हो रही है, फलां काम खराब हो रहा है, इसे उठाओ, इसको बाहर कर दो। इमाम मालिक को भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा इसको छड़ियां लगाओ जरा। वो 16-17 छड़ियां लगाई, अल्लाह आलम किस तरह की होंगी, बहुत ज्यादा सख्त नहीं होंगी, हल्की हल्की होंगी। वो 16-17 छड़ियां लगाई, बच्चा रोने लगा। इमाम मालिक कहने लगे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, तकलीफ हुई है, दर्द हुई तुम्हें? कहा उस्ताद जी तकलीफ हुई है। कहा मैं तकलीफ से नहीं रो रहा, मैं किसी और बात से रो रहा हूं। कहा क्यों, किस बात से रो रहे हो? कहा उस्ताद जी मेरे माँ बाप ने अपना मकान बेचकर मुझे आपके पास हदीस का इल्म सीखने के लिए भेजा है, और मुझे इल्म की बजाय यहाँ पे छड़ियां लग रही, मुझे इस बात से रोना। इमाम मालिक रहमहुल्लाह मुस्कुरा दिए, कहा बेटा आ गया। फिर उनको हदीसें सुनाई, 17 छड़ियां लगाई थी, 17 हदीसें उनको सुनाई और कहा लिख लो, नोट कर लो। शागिर्द फिर आगे से मुस्कुराया, कहने लगा उस्ताद जी ज़िदनी फिल ज़र्ब व ज़िदनी फिल हदीस। उस्ताद जी एक एक छड़ी लगाते जाएं और एक एक हदीस मुझे सुनाते जाएं, मेरा इल्म जो है वो बढ़ता चला जाए। इमाम मालिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराते। उलमा ने, अहले इल्म ने, लोगों ने अपनी जायदादें बेचकर इस दीन को हासिल किया है। आज हमारे पास इल्म को सीखने के लिए वक्त नहीं है, जुमा पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं इस जुमे में किस्से कहानियां नहीं सुनाता हूं। आपको मालूम है जुमे में मसाइल का जिक्र किया जाता है, बहुत सारे सुन रखे होते हैं, तजदीद भी हो जाती है, कभी नई बातें भी आती हैं। ये भी एक इल्म की महफिल है, हमारा इल्म सीखना और सिखाने का अमल है। लेकिन कुर्बान जाइए, आपके लिए सब कुछ कुर्बान है, सब कामों के लिए वक्त मौजूद है। जुमे के लिए 40 मिनट का टाइम हमारे पास मौजूद है। नमाज तो आपकी फर्ज है ना, नमाज तो आपने पढ़नी 40 मिनट के बाद नमाज का टाइम है। जुमे का हमारा टाइम तकरीबन 40 मिनट का है। 45 मिनट से मैंने बात शुरू की है, 15 मिनट वो ले लें और 20 मिनट ये ले लें, 35 मिनट, 5 मिनट मजीद लगे लें खुतबे का, 40 मिनट हो गए। 40 मिनट हम जुमा पढ़ने के लिए, इल्म देने सीखने के लिए टाइम नहीं दे सकते। बाकी इल्म हम कहां से सीखेंगे, आप खुद अंदाजा लगा लो। हमारा कितना शौक है, जिसके ऊपर मैंने बतलाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम। ये हदीस हर स्कूल के दरवाजे के ऊपर लिख रखी है। इल्म का सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है, स्कूल का इल्म नहीं, ये दीन का इल्म, ये सीखना फर्ज है। और उस सीखने के लिए हमारे पास हफ्ते के अंदर 40 मिनट मौजूद नहीं। मजे की बात तो तब है कि खुतबा शुरू होने से पहले पूरी मस्जिद भरी हो, कोई बंदा बाद में ना आए, पहले आए कि ये भी इल्म है, ये भी सीखना, चलो और जगह पे टाइम नहीं मिलता, इस मौके पे आकर हम इल्म हासिल कर लें। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। जिस दिन मैं बात कर देता हूं ना कि जुमे से पहले, मौलवी साहब आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखा करें, लोगों को बड़े काम होते हैं, जरूरतें होती हैं, उनका भी ख्याल रखें। और मैंने क्या ख्याल रखना, मेरी तरफ से एक भी ना हो, मुझे क्या है, ये आपका फायदा, आपका नुकसान है। अजर भी आपको मिलना है, इल्म का फायदा भी आपको मिलना है। नहीं आएंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। मुझे हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तो अजान देनी है, अजान देने वाले ने अजान दे देनी है। कोई आता है आ जाए, कोई नहीं आता ना है। अजान देने वाले का क्या कसूर है कि मौलवी साहब अजान देने में हाथ हल्का रखा करें, आप क्यों बुलाते रहते हो लोगों को? भाई हमारा बुलाना भी जुर्म है। अजीब इत्तेफाक है, हम लोगों को खैर की तरफ दावत देते हैं तो उसमें भी कहते हैं हाथ हल्का रखा करें, ये भी जुर्म है। आप लेट आए तो कोई जुर्म नहीं है, आप ना भी आए तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जो खैर की तरफ दावत देने वाला वो मुजरम बन जाता, उसे हाथ हल्का रखने का जो है वो हुक्म दिया जाता। भाइयों, ये इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से भी सीखा जाता सीखिए, इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है।
दुनिया के इल्म के लिए कहते हैं 5 साल का बच्चा वहां पे दाखिल कराएं, 10 साल का बच्चा वहां पे दाखिल कराएं। दीन का इल्म सीखने के लिए कोई कैद नहीं है। 40 साल का है, 50 साल का है, वो आए और सीखे। हर उम्र में जो है वो सीखे और उसको सीखना चाहिए। ये हमारे मदारस का आगाज हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। शव्वाल के महीने में मदरसों में दाखिले शुरू होते हैं। हम नहीं सीख सके ना सही, हमारी औलादों में से बड़े बच्चे हो गए, वो नहीं सीख सके, कारोबार में लग गए ना सही। कोई एक बच्चा तो निकालिए, हर बंदा एक एक बेटा तो अपना निकाले, अपनी एक एक बेटी तो वक्फ करे। या अल्लाह ये बच्चे को मैंने दीन सिखाना है, या अल्लाह कल मैं मर जाऊंगा तो जनाजे में दुआएं तो मांगेगा, या अल्लाह मेरे फौत होने के बाद इसको दुआएं तो आती होंगी कि कौन कौन सी दुआ करनी है, मरने के बाद वालिदैन को दुआओं में कैसे याद करनी है। ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। इसलिए अपने लिए जो है वो वक्त निकालिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। 10 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3-4 को पढ़ाइए इंजीनियरिंग और अंग्रेजी सिखाइए। एक बच्चे को कुरान और हदीस का इल्म सिखा दीजिए, दीन का इल्म सिखा दीजिए। इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा, आपकी कामयाबी का जरिया बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमें इस जानब भी तवज्जो करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।